वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? आप समर वेकेशन का भी इंजॉय कर रहे हो और इसी इंजॉय के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी सिलेबस भी कंप्लीट होती रहे। और इसीलिए मैं टाइम टू टाइम आपको मैं क्वेश्चन आंसर और स्टोरी जो भी चैप्टर की है उसको मैं कंप्लीट कराता हूँ, ताकि आप इंजॉय के साथ साथ आपकी जो सिलेबस है वो कंप्लीट होती रहे। टोटल 13 चैप्टर आपके सिलेबस में आती है और 13 चैप्टर में आपको टारगेट रखनी है कि हर मंथ में आपको 2 चैप्टर्स कंप्लीट करनी है। तो 2 चैप्टर्स आप हर मंथ में टारगेट रखेंगे, कंप्लीट होगी तो आपकी सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगी। और यदि टाइम से पहले आप ऑल चैप्टर्स को कंप्लीट करते हो ना, तो एग्ज़ाम के पहले आप अच्छी तरीके से इसको क्या करेंगे, रिवीजन कर सकते हो। और यदि रिवीजन आपकी अच्छी तरीके से होती है तो क्या होगा, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। तो ये हमारा टारगेट रहता है और आपको फॉलो करनी है। सो ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड chapter number 1, 2 and 3, and now in this class we are going to complete the chapter number 4, question and answer we have to complete. So now let's we start without doing delay. Tick the correct option, and first question you can see here, special skills can make the physically challenged children. तो यहाँ पर क्या होगा, you have to tick option number B, confident. Next one, question number 2 is that कि children with physical challenges have difficulty in forming relationship with others due to less confidence. Option number B is correct. Now next one, question number 3 is that physically challenged children should be given education which is क्या होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर B, inclusive. Next one, the condition of socially deprived children can be improved through education. Option number C is the correct. Next one, question number B is that fill in the blanks. Now let me see the first question. तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, a little care and love can make a great difference in the lives of dash challenged and dash deprived children. तो यहाँ पर क्या पढ़नी है आपको, challenged. what type of challenge, physically challenged. तो this one physically you have to write down ये physically, तो physically challenged and you have to fill up socially, this one here you have to write down socially deprived children. Now next one, number 2 is that especially trained teachers and therapists provide dash to special children. You have to fill up here guidance. टीचर आपको क्या देते हैं, गाइडेंस देते हैं, तो you have to write down here guidance. तो स्पेशल चिल्ड्रन को टीचर्स क्या करते हैं, और थेरेपिस्ट स्पेशल गाइडेंस देते हैं ताकि वो अपने वर्क को प्रॉपर्ली कर सके। नेक्स्ट वन 3, physically challenged children face difficulties in forming. Now what you have to write here, you can see the option here, relationship, this one you have to write down here the relationship. What will you fill here, relationship, in which question number 3rd, the relationship you have to write down here. Next one is that our dash has special provisions to ensure that each and every child gets education. So you have to fill up here, what will you fill, constitution. You can see here this one, constitution. In number 4, constitution you have to write down here. Now next one, the constitution, where you will write constitution, here this one, constitution. Next one, dash education also benefits all students. तो यहाँ पर क्या होगा, let's we see in the box, you have to write down here this one, inclusive constitution, this one inclusive education, first option. What is inclusive? तो at last you have to write down here which place, in 5. तो 5 में आप क्या लिखेंगे, inclusive education also benefits all students. Now next one, question number 3rd. तो 3rd में क्या है, correct the following statements. यहाँ देखो dear children, कुछ स्टेटमेंट दी गई है और आपको क्या करनी है, करेक्ट करनी है, यानी किसी तरह से ये रॉन्ग है। अब क्या रॉन्ग है, लेट्स वी सी, देखते क्या गलत यहाँ पर दी गई है, व्हाट इज रॉन्ग। तो फर्स्ट वन देखो क्या दी गई है, इन अर्लियर टाइम्स पेरेंट्स वर अवेयर अबाउट द हेल्प एंड ट्रेनिंग गिवन टू फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रेन। यहाँ पर मिस्टेक क्या गलती है, यहाँ पर क्या होगा, अवेयर नहीं होते। यहाँ बताया गया ना कि जो पहले जो पेरेंट्स होते थे वो अपने बच्चों को, जो फिजिकली चैलेंज जो बच्चे होते थे उसको स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दे पाते थे, या उसके प्रति वो तो जानकार नहीं होते थे, अवेयर नहीं होते थे। यानी कि कैसे फिजिकली चैलेंज बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए, कैसे फिजिकली चैलेंज बच्चों को सिखाया जाए कुछ भी चीज़ें, है ना। तो ये इसके बारे में अवेयर नहीं थे।
बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिजिकली इन अर्लियर टाइम्स पेरेंट्स वर अवेयर अबाउट द हेल्प एंड ट्रेनिंग, तो यहाँ पर क्या होगा, नॉट होगा, इसको अवेयर को काटनी होगी या फिर इसमें लगाना होगा नॉट अवेयर। तो यू हैव टू राइट द कंप्लीट सेंटेंस हियर, यहाँ आपको क्या करनी है, पूरा सेंटेंस आपको लिखना है। किस तरह से, केवल आपको ऐड करनी है नॉट। कहाँ पर नॉट ऐड करेंगे, वर के बाद। तो इन अर्लियर टाइम्स पेरेंट्स वर नॉट, यहाँ पर क्या लगाएंगे, बीच में आप नॉट लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्लेस नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ क्या आपको लिखनी है। व्हाट यू हैव टू राइट डाउन हियर, यू हैव टू राइट डाउन हियर नॉट। तो इन अर्लियर टाइम्स पेरेंट्स वर नॉट एंड नॉट, और उसके बाद क्या लिखेंगे, कंप्लीट सेंटेंस को आपको उतार देना है यहाँ पर। तो मैं आपको लिख के यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे आपको लिखनी है। तो यू हैव टू सी हियर एंड राइट डाउन इन योर बुक और कॉपी। तो दिस वन कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दी गई है, व्हाट इज द सेंटेंस, स्पेशल चाइल्ड शुड नॉट बी प्रोवाइडेड विद अपॉर्चुनिटीज। क्या ऐसा होना चाहिए, स्पेशल चाइल्ड को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, हाउ यू कैन करेक्ट द स्टेटमेंट, आपको क्या करना है, इस नॉट को हटा देना है, ठीक है। डोंट राइट दिस वर्ड नॉट। तो करेक्ट, व्हाट विल द करेक्ट स्टेटमेंट, यू हैव टू री राइट द स्टेटमेंट लाइक दिस कि स्पेशल चाइल्ड शुड बी प्रोवाइडेड विद अपॉर्चुनिटीज। यहाँ आपको नॉट को गायब कर देनी है, ठीक है, वनिश हो जाएगा, नॉट को नहीं लिखना है। तो दिस वन करेक्टेड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3। तो व्हाट इज गिवन इन स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट इज गिवन फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रेन शुड बी सेंट टू स्पेशल स्कूल्स ओनली। यहाँ पूछा गया है कि जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं ना, चिल्ड्रेन, उसको केवल स्पेशल स्कूल्स में भेजा जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, जनरल स्कूल में, कॉमन स्कूल में भी भेजा जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो हाउ यू कैन करेक्ट द स्टेटमेंट कि फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रेन शुड नॉट, यहाँ पर आपको क्या करनी है, नॉट लगानी है। शुड के बाद क्या लगाएंगे, यहाँ पर नॉट यूज करेंगे। तो आपको तो दोबारा लिखनी है स्टेटमेंट, तो यहाँ पर शुड लिखने के बाद आप क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन द स्टेटमेंट, यू कैन सी एंड राइट कि फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रेन शुड नॉट बी सेंट टू स्पेशल स्कूल ओनली। नाउ नेक्स्ट में स्टेटमेंट नंबर 4। स्टेटमेंट नंबर 4 में दी गई है कि स्कूल हैज नो रोल इन द लाइफ ऑफ स्पेशल चिल्ड्रेन। ये क्या बात हुई, स्कूल की क्या रोल नहीं है, बहुत सारे रोल है बच्चों को आगे बढ़ाने में, स्पेशल चिल्ड्रेन हो या नॉर्मल चिल्ड्रेन हो। तो आपको ये क्या करनी है, नो को हटा देना है, ठीक है। नो नीड टू राइट नो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाउ यू राइट हियर कि स्कूल हैज स्पेशल रोल, या स्पेशल नहीं भी लिखेंगे तो नो प्रॉब्लम, आपके नो, ये जो नो वर्ड है ना बेटा, इसको हटा देंगे। तो हाउ विल यू रीराइट द स्टेटमेंट कि स्कूल हैज रोल इन द लाइफ ऑफ स्पेशल चिल्ड्रेन। कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5, नॉट क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज नॉट क्वेश्चन, दिस इज अ स्टेटमेंट। तो हाउ विल यू राइट एंड हाउ विल यू करेक्ट द स्टेटमेंट एंड व्हाट इज गिवन हियर। तो यू कैन सी हियर कि सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रेन बिलोंग टू होम्स वेयर द पेरेंट्स आर एबल टू अर्न इनफ मनी। ऐसा क्या होता है क्या, जहाँ पर सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रेन होते हैं, उसके जो पेरेंट्स होते हैं बहुत सारा पैसा कमाते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो बेसिकली नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको कैसे करेक्ट करनी है, हाउ यू हैव टू करेक्ट दिस स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या लिखनी है कि सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रेन बिलोंग टू होम्स वेयर द पेरेंट्स आर नॉट एबल। तो आपको आर के बाद यहाँ पर क्या लगानी है, नॉट लिखनी है। तो नॉट एबल टू अर्न इनफ मनी। नाउ दिस वन कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट वी हैव टू प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर डी एंड लेट्स वी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है डियर चिल्ड्रेन कि विच फैसिलिटी इन स्कूल कैन मेक फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रेन मोर मोबाइल। तो लेट्स वी स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर डी विदाउट डूइंग डिले। एंड नाउ, और अभी पेरेंट्स के गाइडलाइन में ही आप मोबाइल को यूज करेंगे और डिस्टेंस मेंटेन करते हुए यूज करेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि विच फैसिलिटी इन द स्कूल कैन मेक फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रेन मोर मोबाइल। नाउ आंसर इज दैट कि ट्रेन्ड टीचर्स, स्पेशल मशीन्स एंड टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट कैन मेक फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रेन मोर मोबाइल। दिस वन कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर D2 इज दैट, D2 में क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट D2 which important quality do parents and teachers of physically challenged children need? Answer is that qualities like patience, kindness and sympathetic attitude
parents and teachers of physically challenged children need? You can see here. Now this one completed. And next one, question number D3. So D3, what is given here? D3, name one thing that is essential for physically challenged children. Now answer, special skills is essential for physically challenged children. Now next one, question number D4. So D4, what is given here in D4? What do socially deprived children miss? Now next one, answer of this question is socially deprived children miss right to live a decent life. Now next one, question number D5. What is given in D5? In D5, question is that what do you do with your old books, clothes and toys? Very moral question है ना, यहाँ पूछा गया है आप अपने ओल्ड बुक्स के साथ क्या करते हो। अब ये तो आपको बतानी है, बट मैंने जो लिखा है वो भी आप लिख सकते हो। आई हैव रिटन हियर कि आई डोनेट माई ओल्ड बुक्स, क्लोथ्स एंड टॉयज टू नीडी चिल्ड्रेन। तो ऐसे बच्चे जो नीडी होते हैं, जरूरतमंद होते हैं, उन्हें हम लोगों को क्या करनी चाहिए? पुरानी बुक्स जो है डोनेट करनी चाहिए। आपके पास कपड़े हो या खिलौने हो, तो ऐसे बच्चे जो नहीं खरीद पाते हैं उन बच्चों को डोनेट करनी चाहिए, देनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। आप लोग करते हो, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, आई नो। ओके, और अभी कुछ बच्चों ने अपनी बुक्स को डोनेट इस बार किया भी था, तो अच्छी बात है, गुड हैबिट, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर E1 इज दैट कि हु आर स्पेशल चिल्ड्रेन, व्हाट कैन मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइव्स। नाउ सी द आंसर, व्हाट इज गिवन हियर आंसर, ऑलरेडी आई हैव टाइप्ड इन दिस वे। नाउ आंसर मैं ट्राई करता हूं कि आपको इजी से इजी क्वेश्चन